السلام علیکم، میں ہوں ہیرانور۔ آج کی ویڈیو ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے۔ یہ ایک بہن نے اپنا میریکل میرے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ سننے کے بعد آپ کی لائف بھی چینج ہو جائے، آپ کی لائف میں بھی تہجد جو ہے ایڈ ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس بھی یہ ویڈیو آئی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں تہجد کو ایڈ کریں، اللہ کی طرف آئیں اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دے، انہیں ختم کر دے، آپ کی حاجتوں کو قبول کر لے۔ چلے ان بہن کی میریکل سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تہجد سے لو میرج کا میریکل آپ بھی سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ جہاں پر میرا ایک گھر بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 4 سال میں مجھے 2 گھر عطا کیے، اور بتاتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانی ختم کر دی۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ تہجد سے ضرور قبول ہوتی ہے۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کو منواتی ہے۔ تہجد کے وقت 100% آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود پہلے فرش پر ہوتا ہے، وہ پہلے عرش پر ہوتا ہے اور کہ فرماتا ہے کہ مانگ میرے بندے، تجھے جو بھی چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی انسان تہجد میں مجھ سے کچھ بھی مانگ لے گا، بھی اس دنیا کی چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ مانگ لے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دیں گے اس کو۔ چاہے اللہ کے خزانوں میں سے آپ کچھ بھی مانگ لے، اللہ سب عطا کرتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اتنے معجزات دیکھے ہیں، لوگوں کی لو میرج ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، بگڑے کام سدھرتے دیکھے ہیں، ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صرف تہجد کی وجہ سے۔ تہجد کے میریکلز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ ہوتے ہیں نا، تب خود ہی یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے اور کس طریقے سے ہو گئے، یہ ناممکن چیز ممکن کیسے ہو گئی۔ یہاں پر جو سٹوری ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور وہ جو لڑکا تھا وہ بھی اس لڑکی کو پسند کیا کرتا تھا، لیکن اس لڑکے کا رشتہ امیر خبیر گھرانے میں جاتا ہے۔ جس کے گھر پہ اس کا رشتہ گیا تھا وہ لڑکی بہت ہی پیسے والی کروڑ پتی تھی، اور وہ جو لڑکی اس کو پسند کرتی تھی وہ بالکل معمولی سی اور نارمل فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ اب جب اس لڑکے کا رشتہ امیر لڑکی کے یہاں جاتا ہے تو وہ بھی لڑکی اس لڑکے کو پسند کرتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا رشتہ یہاں ہو جائے۔ اب وہ جو معمولی سی لڑکی ہے وہ تہجد پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے وہ دے دے اور میرے لیے اسے بہتر بنا دے، میرے لیے اسے رحمت بنا دے، اور اگر وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو اس انسان کو میرے لیے اچھا بنا کے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تو ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، تو ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا، اس لڑکے کا رشتہ اس امیر گھرانے سے ہٹ کر اس معمولی سی لڑکی سے ہو جاتا ہے۔ مطلب ابھی اس لڑکی والوں نے منع بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اس لڑکے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بات ڈال دی، خود بخود رشتہ لے کے وہ اس معمولی سی لڑکی کے یہاں آ گئیں، جو کہ ایک معمولی سی غریب انسان کی بیٹی تھی، اس کے یہاں پر آ گئیں۔ مطلب یہ میریکل ہوا کیسے؟ تہجد سے۔ صرف اس نے اسے تہجد میں مانگا، کسی سے نہیں مانگا، انسانوں کے سامنے سے رو کر نہیں مانگا، کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلائے، مجھے وہ چیز دے دیں۔ اور جب وہ چیز ہوئی تو سب حیران رہ گئے، سب کے سب حیران رہ گئے۔ اور پھر لڑکی والوں نے جو شور تماشے کیے اور بہت مشکلیں کھڑی کری ہیں، اور دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ کروایا تو کیسے کروایا کہ صرف 3 دن میں ان کا نکاح ہو گیا۔ گھر والے، اس کے گھر والے سب مان گئے، سب راضی تھے، اور جو ناراض تھے وہ نہیں آئے، نہ آئے، لیکن عزت کے ساتھ نکاح کروا دیا، اور سب حیران اور پریشان کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ میرے ابو صحیح کہا کرتے تھے بچپن میں کہ جو چیز تمہیں تہجد دے سکتی ہے نا، وہ کوئی نہیں دے سکتی، کوئی انسان اس دنیا کا بادشاہ بھی تمہیں عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ تہجد میں آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ پہلے عرش پر ہوتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرا بندہ یہ مانگ رہا ہے، میں اسے عطا کروں، اس کو دے دو، اس کی مغفرت کر دو، اس کی دعائیں قبول کر لو۔ بہن بتاتی ہیں کہ یہ معجزہ دیکھ کر میں اتنی خوش ہوئی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنی امی کو ساری بات بتائی، میری امی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور سب کا جو ایمان تھا وہ تہجد پر آیا اور اللہ پر اور مضبوط ہوا۔ اللہ تو ہی ہے بس، اور کوئی ہے ہی نہیں، اس سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تو مجھے بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ بس اللہ تعالیٰ سے چلتے پھرتے ہدایت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نماز جو تہجد گزار بنا دے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ویسے تو تہجد کے بارے میں مجھے میرے بچپن میں میری خالہ جان بہت بتایا کرتی تھیں، کیونکہ وہ 5 وقت کی نمازی تھیں، تہجد گزار تھیں، آدھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ ان کا ٹارگٹ تھا کہ 1 مہینے میں وہ 2
मरतबा कलाम पाक जो है वो पूरा करें। और तहज्जुद में वो पूरी 12 रकात नफलें पढ़ा करती थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम हमें 2 रकात नफल पढ़नी चाहिए तहज्जुद में। कम से कम 2 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात हैं। और हर एक नफल पता है वो कैसे पढ़ती थी, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पढ़ती थी। 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद की नियत कर लेती थी, तो नॉर्मल नफल की तरह ही नियत करनी है। वक्त तहज्जुद का कहना है, और उसमें ना सूरह फातिहा के बाद मतलब 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ा करती थी। 3 दफ़ा जो सूरह इखलास पढ़ता है ना, तो बिस्मिल्लाह के साथ, तो एक मरतबा जो कुरान मजीद का पूरा मुकम्मल पढ़ने का सवाब मिलता है। एक जो मरतबा कलाम पाक का सवाब भी हो गया, तहज्जुद भी हो गई, डबल बेनिफिट हो गया। वो ऐसे पढ़ा करती थी। उसके बाद रुकू, सजदा, सजदे में बहुत दुआएं मांगा करती थी। सजदे में बहुत दुआएं मांगा करती थी। आपको अगर अरबी नहीं आती तो आप उर्दू में ही दुआ मांग लें, जो अपनी ज़बान है आप उसमें ही दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह ताला तू मुझे ये भी दे दे, अल्लाह ताला तू मेरी मग़फ़िरत भी कर दे, अल्लाह तू मुझे दोज़ख से बचाना, अल्लाह तू मुझे जन्नतुल फिरदौस अता करना। एक चीज़ वो अल्लाह ताला से उसी सजदे में मांग लिया करती थी। नफल के सजदे आप बड़े कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा अजरनी 3 दफ़ा पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, या फिर आप ये दुआ पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़िया। आपको कुछ भी चाहिए तो उस सजदे में मांग लें। फिर अतहियात के बाद जो है आप सलाम फेर लें कि नमाज पूरी हो जाए। तो नॉर्मल दुआ भी करें, गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांगें। बताती हैं कि इसमें मेरी खाला ने कहा था कि इस मामले में बिल्कुल भिखारी बन जाओ, दुआ के मामले में। अल्लाह मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, भिखारी बन के मांगो, लालची बन के मांगो, इस तरह भी मांगना है मांगो, अल्लाह से मांगो। बताती हैं कि वो बात मुझे आज तक याद है। कहती हैं जब मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ तो ऐसे मांगती हूँ कि अल्लाह तू तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदों से, तू हमें तकलीफ में कैसे देख सकता है। जब मेरी माँ मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो तू कितनी मोहब्बत करता होगा। अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो अल मलिक है, अल्लाह तो रज़्ज़ाक है, रिज़्क़ भी तू देने वाला है, तू हमारा मालिक है, कि मौत और ज़िंदगी का मालिक है, तूने ही तंदुरुस्ती देनी है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं सिर्फ तेरे ऊपर ईमान लेकर आई, हमेशा तेरी इबादत की और हमेशा तुझसे मांगा, तेरे सिवा कोई है ही नहीं, किससे मांगूं। अल्लाह मेरे दिल में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत भर दे, अल्लाह मेरे दिल में अपने लिए बेशुमार इज्जत भर दे, अल्लाह मुझे ये भी दे दे, अल्लाह मुझे वो भी दे दे। जो भी परेशानी होती है, जो भी दिक्कत होती है, मैं अपने सब अल्लाह ताला से मांगती हूँ। और अल्लाह ताला के सिवा मैं कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती, ना मैं अपने अम्मी अब्बू से मांगती थी, ना ही अपने शौहर से। वही बहन बताती हैं कि 2012 में हम रेंट के एक मकान में रहते थे। बताती हैं कि हम 4 बहन भाई थे, सबसे बड़ी मैं ही थी, और हम बहुत परेशान थे, मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। इतना ज़्यादा रेंट कैसे देंगे, इनकम भी इतनी नहीं है, बच्चों की स्टडी है, ट्यूशन है, मदरसा, सब जगह फीस कैसे देंगे, तो बहुत परेशान रहते थे। फिर मेरी अम्मी ने स्टिचिंग वगैरह शुरू की, पहले भी किया करती थी, लेकिन अब और पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी कि मेरे पापा का साथ देना है। फिर मैंने भी अपनी अम्मी को देखा और मैंने ट्यूशन देना स्टार्ट कर दी छोटे बच्चों की। ये देख कर कि चलो कुछ नहीं तो मैं अपनी ट्यूशन की फ़ीस खुद पे कर सकती हूँ। वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होने लगता है तो उसे दुनिया का पता होने लगता है। तब मुझे पता चला कि सब कुछ तो पैसा ही है, पैसे से ही सब कुछ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अल्लाह ताला से ये तहज्जुद में दुआ मांगूं कि अल्लाह हमें हमारा अपना खुद का घर दे दे। तो फिर मैंने तहज्जुद शुरू कर दी। मैं स्कूल भी जाती थी, अपने काम भी करती थी, घर आके काम भी करती थी, ट्यूशन भी जाती थी और तहज्जुद भी पढ़ती थी। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती थी कि तहज्जुद तो नफल नमाज है, पहले हमें फ़र्ज़ अदा करनी चाहिए। तहज्जुद तो मैं अपने मकसद के लिए मांग रही हूँ, मैं अल्लाह ताला का फ़र्ज़ तो अदा नहीं कर रही। तो फिर मैंने अल्लाह ताला का फ़र्ज़ यानी फ़र्ज़ नमाज़ें वक्त पर पढ़ना स्टार्ट की और तहज्जुद के साथ बैठकर मैं फ़जर का इंतज़ार किया करती थी। फ़जर की नमाज़ होती थी, फिर मैं उसे पढ़ा करती थी। इसके बाद मैं स्कूल चली जाया करती थी, ज़ोहर निकल जाती थी, फिर असर भी निकल जाती थी, फिर मगरिब की मैं पढ़ा करती थी, फिर इशा पढ़ ली, कभी नहीं भी पढ़ी। यहाँ पर वो बहन बताती हैं कि मैं हमें झूठ नहीं बोलूँगी, जो मैं पढ़ती थी वो मैं बता रही हूँ। ऐसे लाइफ जो है हमारी वो चलने लगी। बताती है कि मैं यहाँ पर तहज्जुद जो है पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने लगी। तहज्जुद में मैंने हर वक्त उठना होता था और मैं तहज्जुद 2:30 से 3 बजे के टाइम पढ़ा करती थी। कहती हैं कि बहुत अच्छा लगता था मुझे उस वक्त अल्लाह ताला से मांगना, जब सुकून होता है, कोई नहीं होता। फिर मैंने नमाज़ पढ़ती थी और अल्लाह ताला से रोज़ाना मांगना स्टार्ट कर दिया, अल्लाह तू हमारा अपना घर दे दे। बताती हैं कि हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे शहर में रहते थे, बहुत बड़े शहर में रहते थे। मैं कहती थी अल्लाह यहाँ बहुत महंगाई है, लेकिन मुझे पता है तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह प्लीज़ हमें हमारा घर दे दे ताकि लोग हमारे पापा को इस तरीके से टॉर्चर ना करें पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। बताती हैं इस तरह के दुआ मांगते मांगते 6 महीने गुजर गए।
तो फिर मेरे बाबा को एक ऑफ़र आ जाती है कि ऐसे एक वहाँ पर एक जो है वो ज़मीन मिल रही है, आप उस जगह पर आकर देख लीजिए और उस पर अपना घर आप बना सकते हैं और इसके पैसे भी आपको बहुत कम देने होंगे। और फिर हम जो है वो घर देखने के लिए चले गए। एक बार जाके चेक तो कर लें कि ये झूठ तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो जब हम उस प्लॉट पर जाते हैं तो वहाँ पर एक जो बंदा था वहाँ का बड़ा, वो मेरी अम्मी के ख़ानदान का जानने वाला निकला, यानी कि दूर का दामाद निकला मेरी मम्मी पापा के जानने वालों का। और फिर मम्मा पापा को यकीन हो जाता है कि भाई ये तो अपना ही बंदा है और मतलब ये कोई बेईमानी तो करेगा ही नहीं। और फिर ऐसे करके वो प्लॉट ले लेते हैं। और फिर मैं इतनी खुश थी कि तहज्जुद में मांगी गई दुआएं सच में कबूल होती हैं। हाँ, टाइम ज़रूर लग जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरा निज़ाम सेट करना होता है कि आपको वो चीज़ कैसे देनी है, किस वक्त देनी है। और फिर मुझे जॉब की अच्छी ऑफ़र भी आ जाती है जिससे मैं घर में थोड़ी अपने पापा की भी हेल्प कर रही थी। और वो जो सैलरी आया करती थी वो 25,000 की आया करती थी। मैं तब भी बहुत खुश थी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी और मैं उसी तरीके से डेली तहज्जुद पढ़ा कर रही थी। इसके लगभग 2 महीने बाद ही मुझे एक बड़ी कंपनी से कॉल आती है, अच्छी जॉब ऑफ़र होती है और उसकी सैलरी जो है वो मेरी पिछली सैलरी से ट्रिपल थी। मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे काम बनना स्टार्ट हो गए। पापा की शॉप भी बहुत अच्छी चल रही थी, भाई को भी अच्छी जॉब मिल गई थी, हमारा स्टेटस पहले से बहुत अच्छा हो गया था। और ये सब कुछ तहज्जुद मिरेकल्स है, यानी तहज्जुद से हमें सब कुछ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने अपनी स्टोरीज़, अपनी मिरेकल स्टोरीज़ हमसे शेयर की, बहुत खुशी हुई। बस देखें, अल्लाह ताला पे तहज्जुद की नमाज जो है यकीन के साथ पढ़नी है और उसी को जो है अपना सब कुछ मानना है। अपनी जो भी परेशानी है, मुश्किलें हैं, वो अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, मांगें। हाँ, रात को उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक चीज़ की नियत कर लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसमें आपका साथ ज़रूर देता है। अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद को अपनाएं, देर सवेर लेकिन आपका काम ज़रूर बनेगा। आज की मिरेकल वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।